All right, guys, welcome to another episode of the Uncapped Indians. We are back, and it's a Saturday. And of course, before we bring you this episode, just a small request. We are on various platforms now. We've also expanded to Spotify, and we take a lot of time. We do a lot of research, of course, and it takes a lot of effort to bring you all these episodes with a lot of insights. And of course, whatever we feel right is going to be worth your time. So, in case if you like our content, we would request you to kindly sort of check out the membership on YouTube, and of course pay as you like. And that's a very small request. It's not something that we want to force upon you because we keep bringing you this, but something that will keep us encouraging. So thank you so much, guys. For those of you who've already become members of the Uncapped Indians, we really are really honored and we feel really privileged that you guys have sort of given us this validation very soon on social media. But yes, if you want us to keep going, that's the way forward. So yeah, without any further ado, we'd sort of start off with this day. This day, a lot of people have been in fact waiting for because this is a special day for Indian cricket in a lot of ways. क्योंकि एक चीज जरूर हुई है after the World Cup, there have been a lot of changes. There have been a change of coach. There have been a change of captain. And today marks the day when, of course, we'd be stepping onto the field now for the first game in this new era, so-called new era, or sort of marketed as the new era of the Indian cricket and also Sri Lankan cricket. But Dhanil, what's happening? I mean, with fitness, I mean, there are news coming in that Sri Lanka, unfortunately, though they selected a strong T20 core, somehow 11 बंदे लेके आना ही बहुत मुश्किल हो रहा है सारे अनफिट होते चले जा रहे हैं बिफोर द टूर बिगिंस ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है श्रीलंका के साथ। एक तो चलो इंजरी है, बट द लास्ट बॉलर जो इंजर्ड हुआ है वो एक्चुअली उसको नेट्स में इंजरी हुआ है, बिकॉज दे वर प्रैक्टिसिंग इन द नाइट एंड हिज थंब गॉट इंजर्ड, सो that is not something in their control. But this injury scare is has been troubling a lot of teams and especially India for a good amount of time. तो इन 2020 एनसीए ने एक सर्वे निकाला था, इंजरी सर्वेलेंस रिपोर्ट। ठीक है, उसमें सारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स बिटवीन अप्रैल 2019 टू मार्च 2020 उन्होंने एक इंजरीज का लिस्ट निकाला, जिसमें रियलाइज किया कि 262 क्रिकेटर्स इंजर्ड थे उस पीरियड में, जिसमें से सबसे हाईएस्ट शोल्डर इंजरी थी अराउंड 14-15%, सेकेंड हाईएस्ट नी इंजरीज थी 13%, देन एंकल एंड देन थाई। एंड दे आल्सो सेड कि इंडिया में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप फिट हो जाते हो, उसके 2 साल बाद, स्पोर्ट्स खेलने के 2 साल बाद ना, आपको वापस से इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। And this was in 2020. Now, obviously, they worked towards it, and NCA and everything got together. Now, the problem with NCA is that if you go to NCA, okay, first of all, when you get injured in India, you get diagnosed by a specialist, saying कि आपको rehab चाहिए कि नहीं चाहिए। Rehab will obviously be a little longer, but अगर आपको सिर्फ इंजरी मैनेजमेंट और एक्सरसाइज से हो जाएगा तो आपको NCA जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, सो द इट इज डायग्नोस्ड बाय स्पेशलिस्ट। फिर वो जाता है एनसीए में। एनसीए में दो लोग मिलते हैं उसको, एक फिजियो और एक ट्रेनर। ट्रेनर जो आपकी जिम एक्टिविटीज कराता है, फिजियो जो देखता है कि वो जिम एक्टिविटीज ठीक है नहीं और उस मसल पे कितना प्रेशर डालना है कितना नहीं डालना है। जब आप वो दोनों फिट कर देते हैं तो हेड ऑफ एनसीए के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये फिट है, इसे नेट्स में बॉलिंग या बैटिंग कराओ। फिर अगर आप बॉलर हो तो आपको यॉर्कर डालना है, बाउंसर डालना है, अलग अलग तरह की डिलीवरीज डालनी है, सो दैट दे नो कि कौन से बॉल में कितनी एनर्जी लगानी है, कौन सा मसल ज्यादा यूज हो रहा है, आर यू फिट इनफ टू प्ले। एंड देन दे टू इन्फॉर्म द हेड कोच। अब प्रॉब्लम ये हुई ना कि सिर्फ नेट्स के बेसिस पे आपने हेड कोच को बता दिया कि ये फिट है, हाँ भाई डेस्परेटली ये प्लेयर चाहिए हमें टीम में जीतने के लिए, आप प्लेयर को ले लेते। तब जाके अनिल कुंबले, डब्ल्यू वी रमन, उन्होंने सजेशंस दिए कि आप प्लेयर्स को मैच खिलाओ, कम से कम 2-3 एनसीए में मैचेस खिलाओ। इफ यू फील ही इज फिट इनफ, then you take him in the team. That's what happened with Bumrah also. They rushed him into, after that stress back injury, they literally rushed Bumrah back into the squad. He got injured again and they had to get him back. That is also the same time when Rohit Sharma was very frustrated कि दीपक चहर नहीं मिल पाता है, रविंद्र जडेजा को एंकल इंजरीज है, बुमराह इज नॉट बैक। फिर एनसीए ने वापस एक कमेटी बिठाई विद ऑफ कोर्स बीसीसीआई एंड दे सेड यू नीड वी नीड टू ब्रिंग द योयो टेस्ट बैक, कि भाई आप योयो टेस्ट करो क्योंकि वो फिटनेस का एक पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। Then they came up something known as a DEXA scan.
DEXA scan is basically a breakdown of bone mass, fat tissue and muscle in the body. तो यो टेस्ट DEXA scan के बाद ही प्लेयर को आगे लेके जाते थे, so that there are multiple layers of this thing added before they sort of enter into that. उसके बाद उन्होंने बोला कि प्रॉपर कंडीशनिंग होनी चाहिए प्लेयर की बिफोर एंटरिंग द सिस्टम, मतलब सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट या क्रिकेट मैचेस खेलने पड़ेंगे आपकी इंजरी के बाद। काफी प्लेयर्स ने ये भी बोला है कि क्या होता है ना कभी कभी कि एक रविचंद्र अश्विन और विराट कोहली के लिए सेम ट्रेनिंग सेशन नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज देयर बॉडी टाइप इज डिफरेंट। इन फैक्ट दे वेंट टू सो मच डिटेल कि अगर बुमराह बॉलिंग कर रहा है उसकी एक्शन अलग है, उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे स्ट्रेस आ रहा है, मोहम्मद सिराज की बॉलिंग एक्शन अलग है, तो बॉलिंग एक्शन जिसकी जिसकी अलग है उसकी उस हिसाब से ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो यू कांट हैव वन सिंगल ट्रेनिंग फॉर अ बैट्समैन और अ बॉलर, एंड यू कांट हैव वन सिंगल ट्रेनिंग फॉर अ बॉलर विद अ पर्टिकुलर एक्शन। जैसे डेनिस लिली था, ठीक है, डेनिस लिली को इंजरी हो गई थी बहुत गंदी, उसके उस टाइम पे उसका क्रिकेट करियर थ्रेटन हो गया था, बट ही वर्कड हार्ड इन द जिम, he came back and changed his action, and then he became a more lethal bowler. India में of course it's quite a taboo to ask someone to change his action because that takes his natural ability away कि भाई आप बुमराह को नहीं बोल सकते कि एक्शन चेंज करते, वो बचपन से ऐसे ही डाल रहा है, ठीक है। So that's something that NCA really needs has done, and then they also said that BCCI should start specialized camps. तो पहले क्या होता था ना कि विकेट कीपर कैंप होता था, एक स्पिनर कैंप होता था, एक फास्ट बॉलर कैंप होता था, एक बैट्समैन कैंप होता था। ये सारे कैंप्स वापस एनसीए को लाने चाहिए या बीसीसीआई को लाना चाहिए, ताकि एक, बिकॉज अभी क्या हो गया ना कि आप क्रिकेट थ्रू आउट खेलते हो, आप ऑफ सीजन नहीं होती आपकी, या तो आईपीएल या तो आपका लोकल लीग, या फिर लोकल लीग खत्म हुआ तो डोमेस्टिक, डोमेस्टिक खत्म हो गया तो इंडिया कॉल आ जाता है। So that workload management is what now the BCCI and this thing NCA are working with, and that is why you see Jasprit Bumrah being preserved. That's why they said that he's a national treasure, etc., etc. One thing that also needs to be highlighted here is हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया में जीते थे ना, और जब हमारे बहुत सारे players had to leave because of etc. reasons or were not available for the test match, and we had a sort of a little minor team, that credit also goes to NCA, पारस मामरे एंड राहुल द्रविड़। उन्होंने क्या किया कि 150 बच्चे सिलेक्ट किए, ठीक है, कि 150 लोग होंगे, उनको 6 हिस्सों में बांट दिया, ग्रुप्स ऑफ 25, और उनको जोनल क्रिकेट अकेडमी में भेज दिया। वहां से 50 बच्चे सिलेक्ट किए, टोटल 150 में से 50 फिल्टर आउट किए। उन 50 को फिल्टर आउट करने के बाद उन सबको एक बैंड दिया टू मॉनिटर देयर फिटनेस, एथलीट मैनेजमेंट बैंड बोलते हैं उसको, which was created by the physio of India under 19 along with the analyst। और वो बैंड आप घर पे लेके जाओगे तो घर पे बैठे बैठे वो एनालाइज करेगा आपको कि आपका स्पाइक हुआ है कुछ, तो फोन करेगा, भाई स्पाइक क्यों हुआ है, बोलते सर मैच खेलना है। तो वो फिर बोर्ड को बोलते थे कि इसका वर्कलोड बढ़ गया है, इसको मत खिलाओ आगे वाला मैच। सो दे हैड टू कॉन्स्टेंटली बैलेंस दोस थिंग्स आउट कि भाई इसको मैच मत खिलाओ, नहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा इसका न्यूट्रिशन आप क्यों नहीं देख रहे हो, आपको हमने एक प्रोग्राम बना के दिया है स्पेशलाइज, वो क्यों फॉलो नहीं हो रहा है, क्यों डिप हो रहा है, तो वो घड़ी पहन के आपको रखना पड़ता था वो थ्रू आउट। दैट इज हाउ जीपीएस मॉनिटरिंग हैपेंड, एंड दैट इज व्हेन एमएसके प्रसाद, पारस मामरे, राहुल द्रविड़, ऑल ऑफ देम कुड क्रिएट अ पूल ऑफ फास्ट बॉलर्स who were injury free because they were constantly being managed। अब यही चीज श्रीलंका में होगी, नहीं होगी ना? पैसा पैसा सिर्फ पैसा नहीं, तो चेस्ट कंजेशन से हॉस्पिटलाइज हो गया विराट को। यार ये पता है Even देखो, the इनिशिएटिव, ये जो इनिशिएटिव पूरा डेटा ड्रिवन है ये ना, सबसे पहले ये जो वो टाइम पे एमएसके प्रसाद थे ना, उन्होंने इनिशिएट किया था। एमएसके प्रसाद ने बोला ऐसे करना चाहिए, तब सब बाद में सब लोग पिच इन हुए ना। हम एमएसके प्रसाद को बोलते हैं यार 2 मैच खेला, उसको क्या पता वो क्या करेगा। इट्स नॉट नेसेसरी यू हैव प्लेड अ 20,000 और यू नो सो मेनी ऑड मैच, देन यू ओनली एबल टू एनालाइज द क्रिकेट। बहुत लोग बोलते हैं ना कि जय शाह को बैट पकड़ना नहीं है तो क्या कर रहा है। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि राहुल द्रविड़ ने उस लेवल, या फिर जीजी ने अभी तक सिर्फ मेंटोर किया है, कोई टीम को कोच नहीं किया है। तो यार जब आप कुछ चीजें पढ़ोगे ना, देन यू रियलाइज दैट नहीं यार इस बंदे ने कुछ इनिशिएटिव लिया और उसने कुछ आके चेंज किया है। तो ये एमएसके प्रसाद का इनिशिएटिव था। वो होता है ना ये यार मैं कि जब आप, एग्जांपल तरीके से बता रहा हूँ। नहीं वो होता है ना कि जब आप खेल रहे होते हो और आपको 24 साल की उम्र में 4 ही मैच खेलने मिलता है टेस्ट इंडिया के लिए, तो आपको लगता है ना यार मुझे ये क्यों नहीं सिखाया किसी ने उस टाइम पे।
जैसे राहुल द्रविड़ ने बोला कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया वाले प्लेयर को देखते थे, वो बड़े से फिट, और हमें क्या बोलते थे, लैप लगाओ, जॉगिंग करो. But now a lot of this is a debate in India if fast bowlers should spend how much time in the gym, because if they spend too much time in the gym, the shoulder muscles become so big that their action gets affected. However, there are a few of them who say no, they need to go to the gym because the strength is needed. तो यहाँ पे एक बैलेंस ये होता है कि आपको लाइट वर्क करना होता है जिम में या हैवी वर्क करना होता है. सो दैट्स वन डिबेट दैट इज constantly in India about what fast bowlers and how much time should one fast bowler spend. इनफैक्ट शम्मी का पता है एक वीडियो आया था, ट्रैक्टर लेके वो खोद रहा था फील्ड. वो उगाने के लिए नहीं खोद रहा था, वो उसी फील्ड पे दौड़ता है फिर, बिकॉज द सॉइल गेट्स सॉफ्टर, हिज मसल्स गेट टफर. सो वो देसी इलाज बोलते हैं ज्यादा जरूरी होता है आपकी बॉडी के लिए. बट दैट्स शम्मी फॉर यू. दैट्स उसका टो इंजरी है ना, बार बार टो हील जो होता है उसका उसी पे इफेक्ट होता है. ही वाज सफरिंग फ्रॉम दैट इंजरी. दिस इज द रीजन. क्योंकि आप उसी पे लैंड करते हो यार, सबसे पहले आपका लैंड ही उसी पे होता है, देन यू स्टार्ट बॉलिंग. फिर ये भी तो है ना यार कि आपकी, अब जैसे आपकी एक हो सकती है साइड आर्म एक्शन, एक होती है आपकी ओपन चेस्ट एक्शन, और एक होती है आपकी मिक्स्ड एक्शन. और ये ओपन चेस्टेड एक्शन 80s में वेस्ट इंडीज वाले लेके आए थे. उससे पहले सब साइड आर्म एक्शन वाले थे. ये जो मिक्स्ड एक्शन है ना, यहाँ पे दिक्कत होती है प्लेयर्स को कि एक बॉडी का पार्ट एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, एंड दैट्स व्हेन द मसल्स आर मोर स्ट्रेच्ड और मोर अंडर वर्कलोड. और अब अच्छी बात है यार, अब एनसीए इज really done well to manage workload and fitness. और यार 50-60 प्लेयर कॉन्ट्रैक्टेड पूल में है, आपको इंजरी हुई आप तुरंत एनसीए जा सकते हो. आपको वहाँ खाना पीना रहना सब कुछ होगा, सब ध्यान रखेंगे आपका. उसके बाद आपसे फॉलो अप भी करेंगे कि भाई ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं. करेक्ट. कमेंडेबल यार. Even after all this, आज सुबह सुबह एक वीडियो आया जहाँ पे जीजी को बिठाया गया है. उसने कहा कि भाई आप स्पेस बार दबाओ. एक मैसेज आया है राहुल द्रविड़ से. राहुल द्रविड़ ने एक मैसेज भेजा है कि मतलब क्या कहते हैं, आगे बढ़ाओ इस मेडल को, ये वो. और उसमें एक छोटी सी लाइन उसने बोली है कि मतलब आई होप दैट यू ऑलवेज हैव अवेलेबिलिटी ऑफ फुली फिट प्लेयर्स. So let's hope that he does that. But quite a lot of things happening in the domestic circuit, Ankit. मतलब MCA में धूम है, मतलब काफी सारी चीजें हो रही हैं. There's this something called as the Kanga League, apparently, which should help the cause of our T20 captain Surya Kumar Yadav also. सो यार कांगा लीग पता है मुंबई का बहुत खड़ूस और स्टबर्न लीग बोला जाता है, क्योंकि यार ये ऐसे टाइम पे खेला जाता है जब मॉनसून पीक पे रहता है, फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर. और दैट्स द इनिशिएटिव टेकन बाय एमसीए. इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1948 में, जो कि होरमांझी कांगा जो थे, डॉक्टर होरमांझी कांगा मेमोरियल क्रिकेट लीग है ये, उनके ऊपर नाम दिया गया है. और उसमें बोला जाता है ना, ये कंडीशन ऐसी होती है ना कि एक ही दिन में आपको स्विंग, स्टॉप, स्किडी सब कुछ देखने मिल जाता है वो टाइम पे. और बोलते हैं ये भी है कि जो अगर आपने 30 से 40 मिनट अगर लगा दिया ना, स्पेंड कर दिया उस जगह पे, उस पिच पे, तो सपोज लाइक कि आपने 4-5 घंटे खेले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में. अगर आपने 30 से 40 रन बना दिए, इट इज अ वेरी हाई अचीवमेंट. एक ऐसा बैट्समैन है आदित्य तरेकर के जिसने 200 रन मारे हैं, और इसमें बहुत सारे स्टार प्लेयर्स खेले हैं. मतलब एक कम रूम में सचिन तेंदुलकर आता है, खेलता है 11, जब 11 साल के थे उन्होंने खेला है. सुनील गावस्कर ने खेला है, विजय मांजरेकर ने खेला है, जहीर खान जब 18 साल के थे उन्होंने एक पूरा सीजन खेला था, रोहित शर्मा अपने अर्ली डेज पे खेले हैं, सूर्य कुमार यादव भी अपने अर्ली डेज में खेले. इसीलिए पता है लोग बोलते हैं कि मुंबई क्रिकेट का डोमिनेशन यही एक रीजन है, क्योंकि वो ऐसी कंडीशंस में खेले हैं जहां पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बॉल कितनी स्पीड से आ रहा है, कब उठ के आ रही है, कब बैठ के आ रही है. उनको ये बहुत अच्छे से, वो वेल वर्स्ड है इस कंडीशन से. दिस इज द रीजन पीपल टेक इनिशिएटिव एंड प्ले अ कांगा लीव्स. सो ये एक छोटा सा कांगा लीव्स के बारे में बहुत बहुत लिमिटेड, क्योंकि पता अभी वो ये अपना डोमेस्टिक एमसीए द्वारा इनिशिएट किया गया है, जिसमें लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये लोकल टूर्नामेंट है यार. ये कहीं फीचर्ड नहीं होता है, कहीं दिख के नहीं आता है, बट इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है. सुनील गावस्कर ने भी खेला, यहाँ तक सुनील गावस्कर ने खेला, दिलीप वेंसारकर ने भी खेला, उसमें विनोद कांबली भी खेले हैं.
तो ऐसे सारे मुंबई के जितने भी स्टार प्लेयर्स हैं ना, दे हैव टेकन अ पार्ट इन दैट पर्टिकुलर लीग। 14-15 टीमें बात आती हैं है इसमें। यार, अपने पास तो पैसा है, ऐसी चीजें हाँ, कर सकते हैं। बाउंसर्स अलाउड है क्या वो लीग में? अरे भाई वो बाउंसर अलाउड, मेरे को लगता है इसीलिए मुंबई के जो ये बैट्समैन है ना, बहुत फियरलेस होते हैं, क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कितनी भी स्पीड से आए बॉल, देख लिया जाएगा। हम्म। इसीलिए इसको खड़ूस क्रिकेट बोला जाता है, यही एक रीजन है इसका। देखने जाना पड़ेगा। उससे याद आया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज एक टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और ये तीसरा टेस्ट मैच है इस टूर का। बट समहाउ मतलब लोग वही कह रहे हैं कि जिस तरीके से वेस्ट इंडीज इस पूरे टेस्ट सीरीज में बैटिंग कर रही है, उन्होंने सिर्फ एक बार 400 बनाए, और इस टेस्ट सीरीज से पहले वो बाकी के 3 जो इनिंग्स खेले उस 400 के अलावा, वो टोटल मिला के 400 होता है। पर somehow कल 282 बनाया in the first innings, and again you saw the middle order somewhat collapsing. Dhwanil. वो तो हर बार का है, एवरी टाइम आई एम वाचिंग इट, इट विल ऑलवेज बी इन 12-13 overs, 50 for 0, 49 for 0. Okay, then one 70। wicket will fall, 70 for 0 sometimes, then one wicket falls and the other falls, the third falls and the fourth falls. And like in the other matches I would give it to a few players that हाँ यार ball बहुत अच्छी थी. For example, Michael Lewis, they figured out how to get Michael Lewis out. Out of 4 times, 3 times he's been bowled that off stump area, outside the off stump, ball swinging away, either in the slips or to the wicket keeper. And great batsmen get out like that. Like I would not give it to Michael Lewis. A lot of batsmen struggle with the 4th stump line, but समथिंग एंड नासिर हुसैन ने ना बहुत अच्छा एक वो दिखाया था. सो फॉर एग्जांपल इफ क्रेग ब्रैथवेट इज प्लेइंग अ बाउंसर, ओके, Lewis got a very good ball from Mahmood. यार मतलब वो तो it's a very unplayable delivery. In fact, he was looking really good. जब उसने वो 3-4 चौके मारे लुइस ने आते ही, मतलब I'm sorry McKenzie. Lewis took a little bit of time to in fact get off the mark also. McKenzie looked very good. उसने कुछ 12 मारे थे 8 बॉलों में, हाँ हाँ, and उसके बाद he got that peach of a delivery from Mahmood. और वो मतलब स्टंप से ऐसा लग रहा था कि मतलब सिर्फ मिडिल स्टंप ऐसे निकल के उखड़ के, और सिर्फ ऑफ स्टंप और ऐसे खड़ी हुई है, लेग स्टंप ऐसे खड़ी हुई ब्लैक स्टम्प। है। And Lewis took almost I think 21 balls or 22 balls to sort of get off the mark. 19 20 So 2021, हाँ. So somewhere I think और उनका ठीक था, मतलब they opened pretty well and they started off pretty well, but फिर उसके बाद कुछ जमा नहीं, मतलब मैटर it eventually boiled down to Jason Holder and Joshua De Silva. डिसिल्वा। यार ड्यूक्स बॉल पता है, ड्यूक्स बॉल में पता है, स्टुअर्ट ब्रॉड भी बोल रहा था कि जब लैकर होता है ना उस पे, तो आप स्विंग एज अ बॉलर भी एक्सपेक्ट नहीं करते. वो जब लैकर निकलने लगता है, the ball starts getting old, like we've always heard at 40-45 the Duke ball swinging, the older it gets then it starts seeming. अब जैसे क्रैग ब्रैथवेट बैटिंग कर रहा है, ठीक है, उसको एक बाउंसर डाला है, क्रैग ब्रैथवेट इज लिटरली ऑन द बैक फुट, ओके, with his back behind like this and trying to hit a pull shot or trying to duck. Harry Brooks is on the front foot, okay, he is meeting the ball in front of his eyes like here. He's taking the bouncer on the front foot, of course on his toes, and meeting the ball a lot ahead, while Brathwaite and other West Indies players are allowing the bouncer to come to them. That means it gets more steeper as the ball moves up. So Correct. that is one sort of anecdote, एक instance है कि हाँ, look at the way England batsmen are playing, and they said that even Ian Bishop said that it takes a lot of practice to play shots what Harry Brooks is playing. इसकी बात करता हूँ यार, जैक क्रॉली, ठीक है, नॉर्मली क्या हो रहा था, वेस्ट इंडीज जब बैटिंग कर रहा था, बैक ऑफ द लेंथ बैक ऑफ द लेंथ इंग्लिश बॉलर्स डाल रहे थे, ठीक है, जैक क्रॉली डज नॉट अलाउ यू टू सेटल डाउन. अगर आपने बैक ऑफ द लेंथ डाला है ना, उसको पता है आप वहां डालने वाले हो, ही इज गोइंग टू गेट इनटू पोजीशन एंड पुल यू थ्रू आइदर मिड ऑन एंड मिड विकेट, तो आपकी लेंथ खराब कर देगा वो. That is exactly what happened in that over before Jaden Seals obviously got him out, but yeah. So ये थोड़े जैसे एलेक एल्थनास, the way he gets out is, यार वो बहुत क्वालिटी प्लेयर है, पता है, वो जिस तरह से आउट हुआ है अंडर एज लग के,
It's not some बॉल great ड्रैग delivery being हो bowled, गई, यार. So yeah, वही बोल रहा हूँ कि बॉल ड्रैग हो गई थी no. यार। वही है, मिडिल ऑर्डर को सोचना पड़ेगा, किसी एक को रुकना पड़ेगा यार। यू वेस्ट अ बॉल, डोंट लुक फॉर एन अपॉर्ट। यार दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आपका डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो, या तो आप अटैकिंग मोड हो, देन ओनली यू कैन सर्वाइव। अगर आप बीच के दिमाग में सोचते हो मैं रन भी बना लूं, मैं थोड़ा रोक भी लूं, देन विल बी वेरी डिफिकल्ट। ईदर यू बिकम अ लाइक अ राहुल द्रविड़, और यस एज यू सेड, यू नो, बी एग्रेसिव, बी लाइक But अ फिर सहवाग। short selection ऐसा क्यों है उनका? उनका short selection बहुत, मतलब यार केविन हॉज और ये सब सेंचुरीज मार के आए हैं, the kind of shots they were playing was just why? Probably yeah, they need to have a more game time Inexperience for middle the, order. like a test matches. They need more test matches to understand, you know, the, यार वही है, नहीं बोल सकता, अभी तक हमारे पास उतना डेटा नहीं है कि यार क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम हो रही है उनका मिडिल ऑर्डर में। लाइन लग जाती है यार, Inexperienced middle order. वही है बोल रहा एक्सपीरियंस बहुत है। यंग, और केविन हॉज पता है, केविन हॉज रूट्स के जो रूट के साथ खेलता था, for Yorkshire or sponsorships middle players. Kevin Hodge had there for a long period of time. Alec Athena's under 19 long period of time. उसके बाद फिर क्योंकि कर्क मैकेंजी इज आल्सो नॉट इम्प्रेस्ड, इज कर्क मैकेंजी को तो समझ ही नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या. आई गेट दैट, बट वो इतने टेस्ट मैचेस से ही इज नॉट परफॉर्म. तो ये तीन जो है वो थोड़ा देखना पड़ेगा उनको. But they started off well. They started off well as far as at least Everything. bowling is concerned. In the sense कि 3 विकेट निकाल लिए हैं. और मार्कवुड को भेजा था as night watchman, तो वो बेचारा Night watchman. out हो गया. But otherwise, I think just to get the openers out and the way they sort of got Zach Crawley out, क्योंकि Zach Crawley का basically off the patch he's really good. ठीक है, वो जिस तरीके से वो glance करता है, उसका leg glance actually pretty much subcontinental है. पर जिस तरीके से उसको आउटफोर्स किया, बिकॉज ही वांट्स टू बी द वन हु वांट्स टू डोमिनेट, एंड उसको वही आउटसाइड ऑफ बॉल कराई और फिर उसके बाद उसको निक कराया. एंड आई थिंक ये जो पेंटाकेट का जो आउट हुआ था वो थोड़ा सा इन द सेंस मुझे लगा कि यार काफी बाहर की बॉल शेप थी, कि वो अंदर आ गया. बट yeah, but unfortunately, that's the case. But yeah, I mean, if West Indies happen to sort of take some early wickets, then maybe we have a game on our hands. But there's a lot happening in England. There's another thing that's happening in England at the same time, which is the 100. So there's this news that has come out that IPL owners, NFL owners, and वो actor है ना, Ryan Reynolds, वेक्सम ग्रुप ओन करता है. तुम लोगों ने देखा होगा सर डेडपूल में, ठीक है, दैट एक्टर. एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो ओनर्स हैं, द ग्लेजर फैमिली, द कंपनी रेड बुल, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर इन फैक्ट interested in buying the 8 teams that the 100 has. And ECB in fact ये decision ले रही है कि वो अपने 8 टीम्स बेचेगी. सो ऑफ कोर्स 23rd जुलाई को अभी ये शुरू हो गया है, and it will run till the 18th of August. And 100 basically, for our viewers and for people who don't know, this is organized for both men and women. And ये जो सीजन है एक तरीके से बोला जा रहा है कि विंडो शॉपिंग बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि इसमें क्या होगा कि पिच पे जो चीज चल रही है वो तो चल ही रही है, पर हॉस्पिटैलिटी डेस्क में बिठा के बहुत वर्ल्ड स्पोर्ट के बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाएगा और बोला जाएगा कि आओ देखो, दे विल बी वूड टू बाय टीम्स इन द 100. एंड काफी टाइम से इनफैक्ट इंग्लैंड सोच रही थी कि हम इसमें प्राइवेट इक्विटी घुसाएंगे किसी ना किसी तरीके से. और ये चीज इनफैक्ट उन्होंने 2023 में ही सोच ली थी. अभी तक सिर्फ 4 सीजन्स हुए हैं ECB के, सॉरी 100 के. एंड सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज, सो बेसिकली जो टीम्स में उनका स्टेक है वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं. अदरवाइज द ओनरशिप ऑफ द 100 will be with the ECB. So now what they are trying to do is that 49% of the stakes they get in the 8 teams, that is now going to be sold to private equity guys. So let's say for example जो जितने भी IPL owners हैं या जितने भी NFL owners हैं जिनको वो करा जा रहा है, इनको 49% दिया जाएगा.
और 51% जो ये 8 टीम्स को जो काउंटी है जो ओन करती है, मतलब उनको दिया जाएगा ये 51%। और इस पूरे प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट जेमिनी, ठीक है। और इसमें 2022 में इंटरेस्टिंग बात ये भी है, दिसंबर में इनको एक ऑफर भी आया था ईसीबी को। दिस वाज फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड एज ब्रिज पॉइंट ग्रुप। सो दिस इज अ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनी इन लंदन, इनफैक्ट इट्स अ लिस्टेड कंपनी। और वो उन्होंने ऑफर दिया था 75% स्टेक का, कि भाई हम 75% स्टेक ले लेंगे पूरे 100 में, आप हमें बेच दो। एंड दिस ऑफर वाज फॉर 400 मिलियन यूरोस बैक देन, ठीक है। एंड उस टाइम पे ईसीबी इसको एज ए रेवेन्यू स्ट्रीम देख रही थी। वो कह रही थी कि नहीं यार, जिस तरीके से बीसीसीआई ने आईपीएल क्रिएट किया है वैसे ही हमारे लिए ये 100 हो सकता है। और सिर्फ 2 साल हुए थे और उनको ये उम्मीद थी कि ये कहीं ना कहीं बड़ा बनेगा। एंड ब्रिज पॉइंट ग्रुप ना एक बहुत अच्छा ग्रुप है। इनफैक्ट अगर हो सकता है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, मतलब देयर आर डिबेट्स दैट प्रोबब्ली यू वुड हैव सोल्ड इट टू द ब्रिज पॉइंट राइट देन एंड देयर, क्योंकि ब्रिज पॉइंट का ना एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, एक अच्छा बैकग्राउंड है, क्योंकि वो मोटो जीपी, ओलंपिक्स, इन सब में भी काफी इन्वेस्टमेंट किया है उनको। बट द ईसीबी डायरेक्टर ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस अभी विक्रम बैनर्जी करके, उन्होंने बोला है कि काफी सारे आईपीएल और डब्ल्यूपीएल ओनर्स से, एनएफएल ओनर्स से मतलब काफी सारे टाइम से बात हो रही है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि मतलब अभी से हो रही है, मतलब उनसे ऑलमोस्ट लगा लो कि 8 या 9 महीने से बात चल रही है। और काफी लोगों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया है, लोग जुड़ना चाहते हैं। और उनका भी एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है इस चीज में। एंड वी ऑल्सो वांट दीज आईपीएल ओनर्स टू कम इन, क्योंकि दे अंडरस्टैंड द गेम रियली वेल, ठीक है। और उनका जो बिजनेस माइंडसेट है वो बहुत अच्छा है गेम को लेकर। और जहां तक रही एनएफएल ओनर्स की बात, अब यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एनएफएल ओनर्स आर अमेरिकन्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि भैया हमें 49% नहीं, हमें 51% स्टेक चाहिए इस चीज, ठीक है। तो बैनर्जी ने बोला है कि उस चीज में भी थोड़ी बहुत नेगोशिएशन इधर उधर हो रही है। एंड इनफैक्ट क्योंकि अमेरिकन्स को हमें क्रिकेट इंट्रोड्यूस कराना है, तो काफी सारे वीडियोस और डॉक्यूमेंटेशंस भेजे हैं कि भाई पहले आप देख लो कि क्रिकेट है क्या। और उनको अभी बुलाया जा रहा है इंग्लैंड दिखाने के लिए कि ऐसा होता है, हमारा 100 ये है, दिस इज द फैन बेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एनएफएल की ना एक बहुत अच्छी बात है कि एनएफएल ओनर्स को, ठीक है, फैन एंगेजमेंट की तरफ से, मतलब जिस तरीके से आप स्टेडियम में लोग भर सकते हो ना, उस हिसाब से ईसीबी को काफी मदद हुई। क्योंकि अभी तक जिसे कह सकते हैं कि मतलब काफी नंबर्स फ्लाउट भी हो रहे हैं कि यार कितने लोग आ रहे हैं स्टेडियम देखने, टिकट्स कितने की बिक रही हैं, टिकट रेवेन्यू कितना है, एक्सेट्रा। सो उतने ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं जितना उनको एक्सपेक्टेड है। बट काफी ये लोग कह रहे हैं कि यार 49% इज ऑल्सो एक्चुअली अ गुड थिंग टू स्टार्ट ऑफ विद, कंसिडरिंग कि आपका ये एक जॉइंट वेंचर है। और केकेआर के जो सीईओ हैं वेंकी माइसोर, उन्होंने कहा है कि यार जॉइंट वेंचर में ना यूजुअली केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि चलो ठीक है, 100 एक नया कॉन्सेप्ट है, नई लीग है, 4 ही साल हुए हैं इसको। तो उसमें क्या है कि आप कभी कभी क्या कर सकते हो कि आप एक छोटी टीम ले सकते हो, राइट। और छोटी टीम लेके उस पर बिल्डअप करने की कोशिश करो, ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा बढ़े, आपका कॉस्ट उतना ज्यादा ना जाए उस टीम में। पर आपने अगर बड़ी टीम खरीदी, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ऐसी टीम खरीदी जैसे लंदन स्पिरिट्स, ठीक है। लंदन स्पिरिट्स क्या है कि लंदन एमसीसी में खेलता है, वो लॉर्ड्स में खेलता है। तो ऐसे में क्या है कि आपको ऑलमोस्ट अराउंड 120 मिलियन यूरोस भी स्पेंड करने पड़ सकते हैं फॉर दिस 49% स्टेक। सो दिस कैन बी वेरी वेरी हैवी ऑन योर पर्स। बट द रीजंस व्हाई ECB is actually selling the 100, इनफैक्ट देयर आर मल्टीपल, ठीक है। सबसे पहले उनको प्रेशर है कि बहुत सारे लीग्स, कंपटीशन लीग्स आ गए, ठीक है। द बिगेस्ट वन बीइंग एमएलसी। और ये सारी जितनी भी हैं ये देयर आर पुलिंग प्लेयर्स, ठीक है, विद मनी। एंड प्लेयर्स रुक नहीं रहे। अगर आपको ऐसी कोई भी लीग सक्सेसफुल बनानी है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आके खेले उस चीज को। One of the biggest examples, Pat Cummins. ठीक है, he chose the MLC over the 100. And another thing is कि MLC का अभी इनफैक्ट आखिरी स्टेज चल रहा है, कल फाइनल है, ठीक है, बिटवीन वॉशिंगटन एंड सैन फ्रांसिस्को। तो अब आप देख लो कि 6 दिन ऑलरेडी क्लैश चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद G20 कनाडा भी आ जाएगा, तो वो सब भी लीग शुरू होने वाली है। अनदर थिंग इज कि ईसीबी का जो जो डोमेस्टिक
स्ट्रक्चर है उसमें ये लोग पैसा ज्यादा डालना चाह रहे हैं, इसमें और ज्यादा फंड्स डालने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पूरे सेल से, ठीक है, मतलब ये जो 8 टीम्स की जितनी भी ये सेल होगी टू द काउंटीज एंड टू द प्राइवेट इक्विटी ओनर्स, इस पूरे सेल से क्या होगा, 90% of the revenue will actually get distributed amongst the 18 counties that they have plus MCC। तो टोटल 19 हो गया, ठीक है। और ECB का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसका ये कहना है कि यार हमारा जो टैलेंट पूल है ना कंट्री में, वो सबसे ज्यादा हमारा बड़ा सुपर पावर है, ठीक है। और ये चीज जो ऑलमोस्ट they are expecting somewhere around 275 million to be shared in this 19 ways, and of course 150 million जो है कुछ 11 नॉन होस्ट्स हैं वो उनके पास जाएगी, एंड देयर आर अबाउट 425 millions टोटल जिसको आपका आप बेचोगे। एंड एक और बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि यार बीसीसीआई, अब ईसीबी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो ये भी कहता है कि यार रिचर्ड गोल्ड की बीसीसीआई ना अपने एक्टिव प्लेयर्स को नहीं भेजता एमएससी के लिए, और एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल। एंड उसने जो कहा है, एंड आई कोट, कि इंडियन ब्रॉडकास्ट मनी जनरली फॉलोज इंडियन प्लेयर्स, ठीक है। द बीसीसीआई एंड द आईपीएल हैव जस्ट सेड नो, वी वांट द आईपीएल टू बी द नंबर 1 ग्लोबल टूर्नामेंट, and in order to do that we need to make sure that we rely on our strengths, which is the size of our market and the quality of our players. That may change at some point, but we are not basing any of our models on that at this point, ठीक है। और एक और चैलेंज सबसे बड़ा ये भी है कि उनका खुद का जो कैलेंडर है, ठीक है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अब जैसे 100 शुरू हो गया, साथ ही साथ इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज चल रहा है वेस्ट इंडीज के साथ, तो ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट इज नॉट सीन इन अदर कंट्रीज। आप इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते ना कि इंडियन सीरीज भी खेल रही है और आईपीएल भी चल रहा है। एंड नाउ लेट्स लुक एट द नंबर्स, ओके। The 100 makes a loss of 9 million euros, ठीक है, in the first 2 seasons। पहले 2 सीजन में 9 मिलियन का लॉस हुआ है इनको। हालांकि ईसीबी ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, ईसीबी ने क्लेम किया कि नहीं हमें लॉस नहीं हुआ है, पर 11.8 मिलियन यूरोस का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसके अलावा ईसीबी और एमसीसी जो पहले साल मतलब उनको पैसे देने पड़ते हैं एमसीसी को, राइट, और so that the game or the 100 is actually backed by MCC। उनको उन्होंने 24.7 मिलियन यूरोस दिए, ठीक है, टू बैक द 100, और ये कॉस्ट ईसीबी मानता ही नहीं है। सो ये जिस तरीके की मतलब क्या किस तरीके की अकाउंटिंग चल रही है पता नहीं। 2016 में ना जब उन्होंने सोचा था कि यार हम भी 100 ऑर्गेनाइज करेंगे आईपीएल की तरह, तो उन्होंने डिलॉयट को हायर किया, और डिलॉयट ने कहा कि यार आप ना एक पूरा जो ईसीबी को हेल्प किया उन्होंने कि अगर आप जैसा एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हो, उनके लिए थोड़ा सा रिसर्च करके उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई कि अगर आपने 100 जैसा एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया तो आपको पहले साल में 27 मिलियन यूरोस की प्रॉफिटेबिलिटी, सॉरी 27 मिलियन यूरोस का रेवेन्यू होगा, पर सिर्फ इसका 41% रेवेन्यू जनरेट हुआ था। एंड 2029 में ये लोग सोच रहे हैं कि 2 और फ्रेंचाइजीज को ऐड किया जाएगा। सो टोटल अभी 8 थी, तो अभी 10 हो जाएगी, और एक नया ब्रॉडकास्टिंग राइट भी आएगा इस चीज में, क्योंकि स्काई स्पोर्ट्स का सिर्फ 2028 तक कॉन्ट्रैक्ट है। फिर उसके बाद एक नई ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी आएगी, तो हो सकता है कि ये जो द 100 है वो एक नया T20 कॉम्पिटिशन में बदल जाए, ठीक है। सो मे बी दिस 100 माइट नॉट रिमेन 100 बॉल्स, एंड द अर्लियर इंडिकेशंस मतलब ये है कि यार अराउंड आप ये समझ लो कि रिलायंस जैसी जो कंपनी है, ठीक है, दे आल्सो वांट टू इन्वेस्ट इन लंडन स्पिरिट्स, बट द पॉइंट इज दैट बिकॉज दे आर Mumbai Indians and of course they are parties etc all of that, they want 100% of the stake, ठीक है। वो ऐसा नहीं मतलब यार हम 49%, हम ऐसा नहीं, हम हमें मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। शेन वॉटसन ने ये चीज कहा है कि यार ईसीबी बहुत अच्छी चीज कर रही है, और यही चीज बीबीएल को कर लेनी चाहिए थी बहुत पहले, ठीक है, क्योंकि बीबीएल अब धीरे धीरे उसका कम होता चला जा रहा है, बिकॉज इट्स नॉट एबल टू रिटेन अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स, क्योंकि बाकी सारे यार प्राइवेट इक्विटी लगा के पैसे लगा के आपका गेम बड़ा कर रहे हैं। Now the other thing is that 2003 में England was the one to actually come up with the T20 game, but इसको कैपिटलाइज किसने किया? इंडिया विद आईपीएल, ठीक है। तो इंडिया के पास वो फोरसाइट था
ECB के पास वो foresight नहीं था. So they want to, sort of rectify what they didn't capitalize on in the first part or maybe the first decade of this century. तो ये चीज बहुत ज्यादा बोलने में आ रही है. एंड प्लस 2025 का जो ये सीजन है उसमें बिकॉज ऑफ प्राइवेट इक्विटी कमिंग इन, ठीक है, ये हो सकता है कि टीम्स बदल जाएंगी, उनका जो नाम है वो बदल जाएगा, उनकी जर्सीज बदल जाएंगी, ठीक है. और सितंबर में ये पूरा प्रोसेस शुरू होना है जब डिलॉयट और राइने ग्रुप, एक अमेरिकन बैंक है, ये पूरा प्रोसेस एक्चुअली कंडक्ट करेंगे to sort of get the entire sale done. So it's going to be pretty interesting to see as to who all come in, who all pitch in, क्या bidding होता है, क्या process होता है, whether it's on a draft basis, etc., etc. And it is also going to be interesting to see actually with private equity coming in, whether they are able to retain players जो MPC में जा रहे हैं, जो G20 कनाडा खेलने जा रहे हैं, अब वो सारे के सारे 100 खेलने आ रहे हैं, or they are able to create a league which is probably second to the IPL. क्योंकि अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ है. इनफैक्ट सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक्चुअली 100 ऑर्गेनाइज हो रहा था, ठीक है, तब बोला गया था कि यार ECB इज ऑर्गेनाइजिंग द 100 ओनली क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है यार कि इनसिक्योर हो रहे हैं IPL को देख के, कि कहीं सारा पैसा उधर ना चले जाए और कई सारे प्लेयर्स उधर ना चले जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड इट वाज ओनली from the point of view of missing out on a lot of revenue, missing out on a lot of money on the table. So it's going to be pretty interesting to see कि किस तरीके से ये पूरी चीज पैन आउट होती है, and what is going to be the future of 100, because it is not very easy to sustain such big businesses, considering कि UK में usually अभी हमें तो obviously यहाँ पे बैठ के दिखाया जाता है कि यार क्रिकेट की काफी फॉलोइंग है ये वो, and there's quite a lot of purists who are coming in and saying कि नहीं यार हमारी ऑलरेडी जो काउंटी की फॉलोइंग है वो काफी बड़ी है. बट विक्रम बैनर्जी सेज कि नहीं, मेरे को इम्पोर्टेंट है कि एक ट्राइबलिज्म क्रिएट. And what do you mean by tribalism? Like अगर यहाँ पे अगर बोल दिया जाता है कि नहीं RCB गंदी टीम है, RCB ये विराट कोहली एंड ऑल दैट, तो RCB के फैंस ऐसे चढ़ जाते हैं उससे कि नहीं तुम कैसे बोल रहे हो, दो दे हैवंट वन, ठीक है. बट that is not seen when someone or the purists, ठीक है, when they follow counting, ठीक है. ऐसा नहीं है कि ससेक्स और मिडिलसेक्स के बीच में ऐसा वो हो रहा है कि नहीं कोई चक्कर नहीं, हम नहीं जीते तो. So it is so that is the kind of tribalism that they are wanting to create with 100. That is the kind of fan engagement and the fan base and the buzz around 100 that they are trying to create, which so far in the 4 seasons they failed miserably. But hopefully with a lot of people coming in and private equity coming in and a lot of money coming in, they are able to somehow just keep the fans going, because it is for a younger audience. Andrew Stoss ने बोला था 2016 में, it is for a younger audience, it is for a new audience which probably is bored of T20 cricket. So hence we are getting the 100. तो लोग कह रहे हैं यार कि अगर तुम इतना ही करना था, ठीक है, तो इससे बढ़िया तो मतलब तुम 10 ओवर का मैच खिला देते, फिर 5 ओवर का मैच खिला देते. So there's been a lot of criticism from the English media as well, but hopefully yes they are able to create something out of it. Last but not the least, डोनल अंकित, दो चीजें पूछना चाहूंगा. एक ये है कि आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच में जो टेस्ट मैच चल, हाउ डू यू सी दैट पैनिंग आउट? मतलब इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच. जिम्बाब्वे बैटिंग फर्स्ट 210 बनाए, फिर उसके बाद आयरलैंड 250 दे स्कोर्ड विद अ लीड ऑफ 40 रन्स, and Zimbabwe in fact are no wicket, मतलब they haven't lost any wicket, and they are sitting at 16 or 14 something like that. So this might be an interesting test match. I hope it is an interesting test match, because really disappointed with the way they are showing it. Normally, if you watch a match on television, it's from behind the umpire. The quality of the video is very nice. If you really want to watch this match, you'll have to really find where it is first. And when you're watching it, it just doesn't, like, even if you want to watch it with a lot of interest, it's not, the camera angles are not such that you would really like it. But very happy for Ireland, they finally get to witness a test match. People like Peter Moore,
Balbirnie, Curtis Campher जो इतने साल से खेल रहे हैं, most of them are playing the T20 side of Ireland. Other hand, Zimbabwe very happy for अरे वो अपना लेफ्ट हैंडर था ना जो बहुत नहीं राइट हैंडर the young guy who Sikandar Raza was very fond of. What his name? That guy was. I was expecting him to play a lot more, but Brian Bennett. Brian Bennett. Brian Bennett. वो नहीं खेल पाया. बाकी ये सब वापस आ गए, क्रेग अर्विन, शॉन विलियम्स. सो या गुड. इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा और अच्छे से दिखा देना तो मजा आता देख. अच्छा है यार, ये लोग के लिए एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी तो राइज हुई टू प्ले अ टेस्ट मैच. दिस इज द गुड. फुल मेंबर्स है, एक ही टेस्ट मैच है चाहिए ना. फुल मेंबर्स है ये. जिम्बाब्वे भी फुल मेंबर है, आयरलैंड भी फुल मेंबर है, तो उन लोगों को और खिलाना चाहिए. देयर इज अनदर न्यूज़ दैट इज कमिंग अप दैट Afghanistan might play a one-off test with It's a confirm. New Zealand. Afghanistan, New Zealand in India. They are going to play it in Greater Noida. In India. Yeah. क्या खेले नया स्टेडियम बनाया ग्रेटर नोएडा में. So वहाँ खेलेंगे लोग एक, and this is going to happen before the test series between India and New Zealand. So New Zealand kind of sees this as a warm up. तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट हो सकता है यार. मतलब अफगानिस्तान प्लेइंग टेस्ट मैच, इट्स गोइंग टू बी अ साइट टू सी एटलीस्ट. क्योंकि अभी हमने ये चीज देख ली है ना अंडर जॉनथन ट्रॉट कि यार T20 दे आर अ फॉर्मिडेबल साइड. ठीक है, एंड आई डोंट काउंट देम एज अ फालतू टीम. दे आर अ फॉर्मिडेबल साइड. ठीक है, एंड देन व्हेन इट कम्स टू ODI they can be considered as giant killers. ODI अभी ठीक है, but when it comes to test it will be very interesting to see Jonathan Trott यहाँ क्या करता है. You know, how does he change the mindset? So that is going to be very interesting. So yeah, hopefully that's pretty much it. You know, from the world of cricket, guys. Everything cricket. That's the name of our episode. We've talked about domestic cricket. We've talked about India, Sri Lanka. We've talked about the 100. We've talked about England and West Indies, and of course Zimbabwe and Ireland. Of course, what is to come, which is Afghanistan and New Zealand. Yeah, we are on various platforms. We are on YouTube, we are on Instagram, we are on Facebook, we are on Twitter, and of course, we are on Spotify and Amazon as well. And as I mentioned it previously, right at the start, if you want us to keep going, and if you want to encourage us, you know, with the kind of research that we do, because we really spend a lot on these episodes. So any kind of encouragement, pay as you like. The membership is on YouTube. You guys can go there and support us and support our content. Until then, of course, the next time that we meet, which is going to be on Tuesday, take care, guys. Take care and enjoy the first two games of India versus Sri Lanka. Thank you, guys.